Costing, we have started the unit number 1, in which we have gone through the purpose of estimating and costing. We have gone through the needs of estimating and costing. We have gone through the requirements, and most important thing which we have studied in the previous lecture, that modes of measurement. ठीक है ना? So modes of measurement as per IS 1200. So those students who have not gone through those students who have not attended the previous lectures, so I have uploaded the previous lecture recorded lectures. So please go through the lecture so that the remaining things which we will cover in today's lectures will be clear to you. Okay. So beyond this, I'm switching over to the next slide. Yes. Next important is the rules for measurement of each items are invariably described in IS 1200. Okay. So again, according to IS 1200, we have discussed about the various modes of measurement. जैसा अगर earthwork in excavation से, so what is the unit for measurement of earthwork in excavations, or what is the unit of measurement of DPC or flooring or plastering. So we have seen in previous lectures different modes as per IS 1200. Same way IS 1200 gives the rules for measurement. ठीक है ना? कोई भी चीज को अगर मेजर करना है, so what are the rules, what are the things which has been mentioned in IS 1200, what are the guidelines which has been mentioned in IS 1200. So first, number one point is, these are the tolerance. Okay, up to the precise stage we have to measure these things up to an accuracy of this. These are the accuracy up to at what extent we have to measure. ठीक है ना? तो कितना extent तक measure करना है, we have to maintain the accuracy. So serial number 1 is linear measurement shall be measured to the nearest of 0.01 meters. That means अगर linear measurement होता है, running meters में अगर कोई measurement होता है, running fits में और meters में measurement होता है, so what is the that is the up to which limit we have to measure. So we have to measure up to nearest to 0.01 meters. ठीक है ना? तो precise stage में up to the precise way we have to measure, because a small change in the measurement will results in the change in the quantities required, change in the cost which we have calculated, and overall cost, है ना? क्योंकि overall cost भी क्या होगा, फिर change हो जाएगा, because the measurement was wrong. Up to what extent we have to measure in a precise way, तो 0.01 meters. ठीक है ना? तो लेंथ कैसे मेजर होगा, लीनियर मेजरमेंट अगर रहता है तो इट इज टू बी मेजर्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 0.01 meters एज पर IS 1200. नंबर 2 क्या है, अगर एरिया मेजर होता है तो एरिया का मेजरमेंट अगेन सेम थिंग इज 0.01 इंस्टेड ऑफ मीटर, इट इज स्क्वायर मीटर्स. तो एरिया इट इज टू बी मेजर्ड अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 स्क्वायर मीटर्स. सेम वे अगर क्यूबिक कंटेंट में अगर कोई चीज मेजर होती है, जैसा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन क्यूबिक कंटेंट में होता है, ब्रिक वर्क्स क्यूबिक कंटेंट में, आरसीसी इन स्लैब और फाउंडेशन क्यूबिक कंटेंट्स में, तो अगर क्यूबिक मेजरमेंट होता है तो इट इज मेजर्ड अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 0.01 क्यूबिक मीटर्स. ठीक है ना? तो दीज आर द एक्यूरेसी वी हैव टू मेंटेन एज पर IS 1200 व्हाइल मेजरिंग एनी आइटम ऑफ वर्क. कोई भी आइटम ऑफ वर्क को अगर मेजर करना है, दीज आर द extent of that is nothing but accuracy we have to maintain. ठीक है ना? ये extent है, up to this limit we have to measure, we have to maintain the accuracy. तो कितने एक्सटेंट तक, अगर लीनियर है तो 0.01 मीटर्स, एरिया है तो 0.01 स्क्वायर मीटर्स, क्यूबिक अगर कोई कंटेंट है तो 0.01 क्यूबिक मीटर्स. ठीक है? नेक्स्ट इज administrative approval. So this thing already we have seen in the purpose of estimating and costing. A short way may I have described what is administrative approval, but the separate bit is there for administrative approval. So what it says, why it is essential as an estimators, why we have to have a knowledge of administrative approval. So what is actually administrative approval? Number one is formal acceptance related to the requirements of a department. ठीक है? तो these are the various according to the requirement. जैसा अगर सामने वाला फर्म अगर गवर्नमेंट फर्म है, तो according to the requirements of the government department, we have to first find out the cost and find out the different items of works. जैसा अगर उसको अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन करना है या फिर उसको रोड कंस्ट्रक्ट करना है ओनर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज और व्हाट आर द डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क कौन से रहेंगे और उसका कॉस्ट क्या रहेगा. ठीक है? तो फॉर्मल एक्सेप्टेंस रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड वर्क. ठीक है? फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी of concerned department to execute the work. ठीक है? तो what are the requirements?
वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू, यस, कॉस्ट एंड वर्क, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, के कितना कॉस्ट लगेगा, और रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या फिर प्राइवेट सेक्टर्स का, आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में, कि आप काम क्या करेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क, है ना, what is the type of work, whether it is a construction of road or bridge or a residential building or commercial type of work, ठीक है, from the competent authority of concerned department to execute the work related with cost and work. Next, number 2 point with administrative approval is an approximate estimate are submitted to obtain administrative approval. अब यहाँ पे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में अभी अभी स्टार्टिंग लेवल पे वी आर अप्रूविंग, है ना, फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में आप सबमिट कर रहे हैं, तो दिस एट स्टार्टिंग स्टेज देयर शुड बी एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। जब आपको सैंक्शनिंग मिलेगा, जब आप एक्चुअल वर्क करेंगे, तो आप एक्चुअल फिर ऑल द डिटेल्ड एस्टिमेट विल बी टेकन केयर, बट हियर वी आर फाइंडिंग आउट और वी आर टेकिंग आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग स्टेज में एस्टिमेट बना रहे हैं और वो अप्रोक्सीमेट है, so an approximate estimate is submitted to obtain administrative approval to execute work within the sanctioned amount, within the sanctioned amount, ठीक है। तो that amount within the sanction amount, जो भी अपने पास amount था, whether it is in lakhs or crore, जो भी amount sanction है within the amount है, वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट थ्रू अपने को क्या करना है, विद इन द सैंक्शन अमाउंट में वो पहुंच रहा है नहीं है, विद इन द लिमिट्स है नहीं है, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में होगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में क्या होगा, एक तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट बॉडीज की फुलफिल करना है एज पर द कॉस्ट एंड वर्क, और उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना के सबमिट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल, इट दिस वर्ड इटसेल्फ रिलेट समथिंग टेक्निकली। टेक्निकल वर्ड क्या डिनोट करता है, टेक्निकल वर्ड ये डिनोट करता है कि दिस थिंग्स, टेक्निकल वर्ड क्या है, तो टेक्निकल सैंक्शनिंग वर्ड जो रिलेट करेगा, दिस टेक्निकल सैंक्शनिंग वर्ड क्या रहेगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, टेक्निकली फुलफिलिंग द पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल ड्राइंग्स रिक्वायरमेंट है ना। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, सबसे पहला काम किया आपने कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इसको सबमिट कर दिए, उसका एज पर कॉस्ट और वर्क के पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, and this is the cost of the particular type of work and these are the approximate estimate। ये पहला स्टेप में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया आपका। अब नेक्स्ट चीज, जिसका अमाउंट अप्रूव हो गया था, जो अमाउंट अप्रूव हो गया था, अब उसका आपको डिटेल्ड उसका क्या करना है, टेक्निकल सैंक्शनिंग करना है, ठीक है। तो फॉर ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू अ वर्क, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर डिटेल्ड ड्राइंग and estimate of the proposed work which is to be submitted to the appropriate authority of public work department, PWD of the state government for the sanctioning, ठीक है। अब उसी का क्या बनाएंगे आप, डिटेल्ड ड्राइंग बनाएंगे और उसी का डिटेल्ड एस्टिमेट करेंगे जिसका आपको सैंक्शन हुआ है, ठीक है। If the estimated amount of the work exceeds 10% of the amount administrative approval, technical sanction can also be granted after obtaining administrative approval for the work। अगर सपोज ऐसा होता है कि अगर मैंने जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाला था, अब वो जो भी लैक्स में आया था, करोड़ में आया था, जो भी आया था, अब वो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सीड हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, मतलब मार्केट रेट्स के हिसाब से, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द वर्कर्स और डिपेंडिंग अपॉन द एडवांस इक्विपमेंट्स, अगर ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से 10% उसका इंक्रीज हो रहा है। तो इवन दो टेक्निकल सैंक्शनिंग कैन बी ग्रांटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैन बी ग्रांटेड। अगर 10% से ज्यादा होता है, 11, 20 एंड 15, तो अब उसका सैंक्शनिंग नहीं होगा, फिर उसके लिए वो सेपरेट हेड में जाएगा, ठीक है ना, उसका सैंक्शनिंग फिर सेपरेट हेड में होगा। तो 10% एंड बिलो रहेगा तो उसका सैंक्शनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वर्क एक्सीड्स 10% ऑफ द अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन कैन आल्सो बी ग्रांटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब जो आपने अभी पढ़े हैं, जैसा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए या फिर जो टेक्निकल सैंक्शनिंग के लिए जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है आपको, तो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड्स, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी, उसका नाम भी दे सकते हैं आप, प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट इज वन एंड द सेम, दीज टू वर्ड्स आर वन एंड द सेम। तो प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स,
व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या रहेगा फिर? अप्रोक्सीमेट इटसेल्फ, ये जो वर्ड है वो इटसेल्फ क्या डिनोट कर रहा है कि आप अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे हैं उसका, ठीक है ना? इट इज अ रफ आइडिया. So it is a rough estimate prepared to know the approximate cost of work in short time. जैसे मैंने बहुत मतलब इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर किसी के साइट पे आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं या फिर आपका एक फ्रेंड है, आपने ऐसे ही चले गए थे, तो अगर उसका ओपन लैंड है, अरे ही सेज दैट आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ठीक है ना? अगर वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? तो ऐसा नहीं है कि यू कैन से दैट आई विल कैलकुलेट ऑल द डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल कैलकुलेट ऑल द मटेरियल्स एंड आई विल say you after 2 to 3 days, है ना? ऐसा ऐसा नहीं होगा. So you have to say what is the total cost of constructions within a second or within a minute by calculating by comparing that with the similar buildings in the locality. आपको मालूम होना है कि दूसरे जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड हो गए हैं वो लोकेलिटी में, उसका क्या कॉस्ट था, आजू बाजू में बोलो या फिर उसके 0.5 मीटर्स के 0.5 किलोमीटर्स के एरियाज में, या फिर 500 मीटर्स में, या फिर 250 मीटर्स के एरियाज में, वहाँ पे आजू बाजू में जो कंस्ट्रक्शन हो चुका था, तो उसका कितना रेट था, ठीक है ना? सो दैट आई कैन कंपेयर और आई कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन. जो आपको जो बनाना है फ्यूचर में, उसका कॉस्ट मैं निकाल सकता हूँ बाय कंपेयरिंग विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. जो एग्जिस्ट हो चुका है, जो बना है, उसका क्या रेट था, वेदर इट इज पर स्क्वायर फीट उसका कितना रेट था, बिल्टअप एरिया कितना था उसका, और उसका पर स्क्वायर फीट कितना रेट था. उससे मैं करंट एरिया को क्या करूंगा, मैं जहाँ पे बिल्ड करूंगा फ्यूचर में, उससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, ठीक है? तो नंबर 2 पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे, द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज. यस, प्रैक्टिकल नॉलेज से हो सकता है, या फिर एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क्स, मतलब आजू बाजू में जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो मतलब पहले में 3 मंथ्स पहले या फिर 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर पहले में जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसका जो क्या कॉस्ट में उसने कंस्ट्रक्ट किया था, उसका क्या कॉस्ट था. अब मैं जो करूंगा तो उसका मेरा थोड़ा बहुत 10-20% में इंक्रीज कर दूंगा उसमें, रिगार्डिंग देयर इज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ स्टील और फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट. थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता ही है कॉस्ट में, तो ऐसा थोड़ा सा ऐड करके आई कैन हैव एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज से मालूम पड़ेगा आपको और कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क से, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट इज द वेरियस फैक्टर्स ऑफ कंपैरिजन में बी. क्यूबिक कंटेंट से आप कंपेयर करो कि उसका क्यूबिक कंटेंट क्या था, मेरा जो कंस्ट्रक्ट करूंगा उसका क्यूबिक कंटेंट से मल्टीप्लाई कर दो वही कॉस्ट से. या फिर पर कैपिटा अगर कुछ काम है, पर किलोमीटर है, जैसा अगर नियर बाय में अगर किलोमीटर का मतलब रोड्स का कंस्ट्रक्शन मिला है, तो पिछले कॉन्ट्रैक्टर ने पर किलोमीटर उसका क्या रेट था, तो अब मैं अगर कोट कर रहा हूँ टेंडर्स के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए, तो मेरा क्या कोट रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर ने जो रेट दिया था, है ना, पर किलोमीटर का, ठीक है? तो सर्विस यूनिट में भी जैसा पर बेड हो सकता है, अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो पर बेड होगा, या फिर स्कूल बिल्डिंग है तो पर क्लासरूम होगा. तो ये ऐसा पर यूनिट के हिसाब से सर्विस यूनिट भी एक क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आप निकाल सकते हैं एक तो क्यूबिक कंटेंट से, दूसरा पर कैपिटा से निकाल सकते हैं, पर किलोमीटर से निकाल सकते हैं अगर रोड्स के लिए है तो, और हॉस्पिटल और थिएटर्स है या फिर स्कूल बिल्डिंग्स है तो थिएटर्स में पर सीट के हिसाब से निकाल सकते हैं. सर्विस यूनिट, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, स्कूल बिल्डिंग्स है तो वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल बिल्डिंग है तो पर क्लासरूम से निकाल सकते हैं, है ना? तो ऐसा पर सर्विस यूनिट के हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो हो चुका है उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या कॉस्ट चल रहा था. अब नया कंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन, वी कैन फाइंड आउट द cost of that construction. Next is, what is the purpose of approximate estimate, why we have to find out the approximate estimate, or what is the purpose, or why we have to have a knowledge of approximate estimate. क्या है उसका पर्पस? तो नंबर 1 इज टू नो द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट. यस, फिजिबिलिटी, वेदर इट इज फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट. जैसा मैंने बताया था कि अगर सामने वाला बिल्डिंग अगर नियर बाय या फिर नेबर्स में अगर किसी ने कंस्ट्रक्ट किया है 6 मंथ्स पहले या फिर 1 साल पहले, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया था उसने, है ना? अब मेरा एरिया कितना था, अब मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, तो ये एक फिजिबिलिटी होगा कि वेदर इट इज फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग विद द अमाउंट विच हैज बीन अवेलेबल विद मी, विद द फाइनेंस पार्ट में अगर अमाउंट उतना अवेलेबल है मेरे पास कि सो दैट आई कैन कंस्ट्रक्ट so that I can erect the complete structures, so that I can complete the structures in within the time. मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है,
तो ये फिजिबिलिटी मालूम करने के लिए वेदर इट इज फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस एस्टिमेटिंग और दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना, फिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो ये भी मालूम कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंट, मतलब उसमें कितना टाइम लगेगा ड्यूरेशन से, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट क्या मालूम पड़ेगा कि कितना टाइम लग सकता है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो टू नो द प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस, अगेन अभी पढ़े थे अपन ने काई के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यूज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए स्टार्टिंग स्टेज पे अप्रूवल अगर करना है आपको, तो एट दिस स्टेज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अगेन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट काई के लिए यूज होता है, टैक्स फिक्सेशन के लिए, है ना। वेरियस टैक्सेस जो आप पे करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस के लिए, अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है आपको, इंश्योरेंस अगर वो करना है, तो उसके लिए भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और टैक्स फिक्सेशन के लिए, टैक्स शेड्यूलिंग के लिए, टैक्स फिक्स करना है आपको, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अगर आप जाएंगे मतलब एनआईटीज के पास या फिर गवर्नमेंट फर्म्स के पास टैक्स फिक्स करना है आपके लिए, तो डिपेंडिंग अपॉन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट दे विल फिक्स द टैक्सेस, ठीक है ना। आपको क्या कहना है, लैंड टैक्स भरना है वहाँ पे, है ना, यू हैव टू फिक्स, यू हैव टू पे द टैक्सेस, ठीक है। तो दिस टैक्सेस इट हैज बीन फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ये कैसे फिक्स होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से। नेक्स्ट इज प्लानिंग के लिए, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड थर्ड स्टेज में, डिफरेंट स्टेजेस में कैसे कैसा आप काम करेंगे, तो वो प्लानिंग करने के लिए दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज क्या रहेगा, फाउंडेशन है, फिर पीसीसी है, फिर बोल्डर फिलिंग है, मुरम फिलिंग है, उसके बाद फिर कास्टिंग ऑफ प्लेन बीम्स है, कॉलम्स है। ये सारा जो प्लानिंग है फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज, the planning of the complete project, it has been dependent on the approximate estimate, plays an important role. This planning can be done with the help of the approximate estimate, ठीक है ना। अगेन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक थोड़ा सा एक फाइनेंस पार्टी है, कोई किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, तो दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया। जैसे मेरे पास कई सामने वाला इन्वेस्ट करना है कि भाई 10 lakhs की 15-20 lakhs की कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो at what is the at what limit I can invest the amount, up to what extent we can invest the amount, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स और वेरियस एजेंसीज और या फिर वेरियस इन्वेस्टर्स दे कैन इन्वेस्ट द अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है ना। तो उनको एक आइडिया मिलता है कि कितने अमाउंट में ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है फ्यूचर में, है ना। तो ये हाउ मच अमाउंट सो दैट आई कैन इन्वेस्ट, है ना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये समझ में आया सबको? यस, Yes, sir. Yes, यस, sir. Yes, ओके। sir. Yes, sir. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अब निकालना है कि पर्पस मालूम हो गया, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट रहता क्या है वो मालूम हो गया, और उसमें पर्पस क्यों निकालना है वो मालूम किया अभी अपन ने प्रीवियस स्लाइड में। अब कैसा निकालना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अब निकालना है, मगर व्हाट इज द डिफरेंट मेथड्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो उसको उसने टाइप्स में दे दिया है। एक्चुअली दीज आर द मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, मतलब कोई भी चीज को कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑन विच वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। दीज आर द वेरियस क्राइटेरियाज और दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑन विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। नंबर वन क्या है, कैसे निकालेंगे आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, तो प्लिंथ एरिया मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया मेथड बहुत ज्यादा कॉमन है। आप जैसा मेरे एक कंस्ट्रक्शन हो चुका था फ्यूचर में, आजू बाजू में नियर बाय एरिया में मेरे पास कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब उसका मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल प्लिंथ एरिया मालूम करूंगा कि आपका लैंड था, ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट का था, ओके, वो लैंड से मेरे को लेना नहीं है, क्योंकि आजू बाजू से आप 10 फीट्स और 20 फीट्स और जो भी 5 फीट 3 फीट आपको जगह छोड़ने के बाद प्लिंथ एरिया आपका कितना था, है ना। तो आप सामने वाले बिल्डिंग का या फिर सामने वाले स्ट्रक्चर्स का भी फाइंड आउट द प्लिंथ एरिया, उससे मालूम करो कि प्लिंथ एरिया कितना था, ठीक है। और करंट रेट क्या चल रहा है उसका, कंस्ट्रक्शन विथ मटेरियल करंट रेट क्या चल रहा है, तो आप मालूम करेंगे कि उसका प्लिंथ एरिया पर स्क्वायर फीट और पर क्यूबिक फीट या फिर पर स्क्वायर फीट उसका क्या रेट था, है ना। उसने समझो 10,000 रुपीज या फिर 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट लिया था, मतलब काम हो गया था उसका कंप्लीट में, पूरा होना फिनिशिंग सब होने के बाद में उसका जो मैंने डिवाइड किया टोटल अमाउंट को उसके प्लिंथ एरिया से, तो उसका कॉस्ट निकलेगा पर दैट इज स्क्वायर फीट प्लिंथ एरिया, पर स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट बोलो स्क्वायर फीट बोलो, प्लिंथ एरिया का उसका कॉस्ट निकलेगा। अब वो कॉस्ट से मेरे प्लिंथ एरिया के मैं जो कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ उससे मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो एक मेथड है कि प्लिंथ एरिया से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है ना। ये मतलब एक कंटेंट्स में क्या क्या रहेगा वो एक बता रहा हूँ मैं।
क्यूबिक कंटेंट में देखो, एक मेथड भी है क्यूबिक। अगर कुछ काम है मीटर क्यूब में है तो उसको मीटर क्यूब से भी मालूम कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सर्विस यूनिट है, सर्विस यूनिट से भी मालूम कर सकते हैं। जैसा अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो पर बेड होगा, क्लासरूम स्कूल है तो पर क्लासरूम होगा, थिएटर्स है तो पर सीट होगा, है ना। तो ये सारा सर्विस यूनिट में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज मालूम करके भी कर सकते हैं आप। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज निकाल लो कि भाई इसमें इतना काम होने वाला है, इतने क्वांटिटीज निकलने वाले हैं, उसके हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज। और बी मेथड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे ये गोडाउन्स के लिए यूज होता है ना, शेड्स के लिए, रेलवे शेड्स। एक शेड 1 साल 2 साल पहले बना था, या फिर 6 महीने पहले एक शेड मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, जिसका रनिंग मीटर्स में ये लेंथ था। एक शेड समझो, जो भी एरिया का शेड था, वो कितने लाख में बना था, 50 लाख में बना था। अब मेरे को नेक्स्ट अगर शेड बनाना है, वो सेम डायमेंशन है, सेम हाइट है, सेम लेंथ है, सेम स्टील मालूम है, सारी चीजें है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ 50 lakhs आई विल कोट 55 lakhs और 52 lakhs, ठीक है। तो प्लस माइनस मतलब 1 लाख उसमें ज्यादा करके क्या करूंगा, कंपेरिजन करके मैं एस्टिमेट टू द गवर्नमेंट फर्म और एनी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट्स में कोट कर दूंगा। तो बेस, डिपेंडिंग अपॉन द बेस, गोडाउन्स के लिए यूज होता है, रेलवे शेड्स के लिए यूज होता है, गोडाउन्स के स्टोर हाउस वेयर हाउस के लिए यूज होता है, और फैक्ट्री शेड्स के लिए यूज होता है। ये टिपिकल बे मतलब दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, बे बोलेंगे, है ना। 1 बे, 2 बे, 3 बेस, है ना, बेस, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरमीडिएट कॉलम्स, तो बेस। ये भी डिटेल में अभी पढ़ेंगे अपन। तो प्लिंथ एरिया मेथड मैंने तो एक शॉर्ट में समझा दिया था। तो व्हाट इज प्लिंथ एरिया मेथड? एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल, मतलब प्लिंथ बीम का डायमेंशंस ले लो आप, एक्सटर्नल डायमेंशंस ले लो, जहां जहां से वॉल, एक्सटर्नल डायमेंशंस, ठीक है ना। एक्सटर्नल मतलब प्लॉट बाउंड्री नहीं है, एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब कंस्ट्रक्शन वाला डायमेंशन, ठीक है, जहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वॉल्स आए थे, है ना। तो एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल, उसमें क्या होगा, कोर्टयार्ड एंड अदर ओपन एरिया शुड नॉट बी कवर्ड। अगर कुछ ओपन स्पेसेस आजू बाजू में, या फिर कोर्टयार्ड है, या फिर कुछ ओपन स्पेसेस है, जैसे मैंने बताया था, कोई सामने से 5 फीट छोड़ता है, कोई 10 फीट छोड़ता है, कोई 15 फीट छोड़ता है, तो अब उसको इंक्लूड नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। तो कोर्टयार्ड एंड अदर ओपन एरिया शुड नॉट बी कवर्ड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। आप ये चीज, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस। कोर्टयार्ड है या फिर ओपन स्पेसेस है, वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डायमेंशंस लेंगे बिल्डिंग का, सबसे पहला काम करेंगे, और लेते वक्त उसमें फिर ओपन स्पेसेस कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर 3 पॉइंट क्या करेंगे आप प्लिंथ एरिया मेथड में? फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, प्लिंथ एरिया ऑफ ईच स्टोरी इज डिटरमाइन सेपरेटली, है ना। अब मल्टी स्टोरीड है तो जरूरी नहीं है कि जो रेट ग्राउंड फ्लोर का रहेगा प्लिंथ एरिया रेट, वही सेकंड फ्लोर का रहेगा, या फिर जो रेट बेसमेंट का रहेगा वही फर्स्ट फ्लोर, वही सेकंड थर्ड फ्लोर, ऐसा नहीं रहेगा। जैसे जैसा फ्लोर इंक्रीज होता जाएगा, वैसा वैसा देयर विल बी चेंज इन द प्लिंथ एरिया रेट। उसके हिसाब से प्लिंथ एरिया रेट डिफर होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि एक मैंने बना लिया था ग्राउंड लेवल पे तो वही रेट मैंने मल्टीपल कर दिया 10 स्टोरी के लिए, है ना। मेरे पास 10 स्टोरी बिल्डिंग थी तो मैंने मालूम किया कि भाई 10 स्टोरी का पूरा हो गया, एक ही अमाउंट था, वही मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी फ्लोर एरिया सेम रहेगा, बट रेट्स विल बी डिफरेंट, रेट्स ऑफ प्लिंथ एरिया विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, प्लिंथ एरिया फॉर ईच स्टोरी इज डिटरमाइंड सेपरेटली। वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ईच स्टोरी सेपरेटली, हर एक स्टोरी का क्या प्लिंथ एरिया रहेगा। प्लिंथ एरिया विल बी सेम, बट व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट एट ईच स्टोरी। तो ईच स्टोरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लिंथ एरिया रेट इज नोन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग, जैसा मैंने बताया था, आजू बाजू में, लोकेलिटी में, नियर बाय में, 0.5 500 मीटर्स में, 250 मीटर्स में, 200 मीटर्स में, आजू बाजू में जो भी लोकेलिटी में जो सिमिलर बिल्डिंग्स था, उससे मालूम करो। और वो रेट से आपने करंट अभी बनाना है, जिसको फ्यूचर में आपको बनाना है, 1-2 महीने के बाद आपको कंस्ट्रक्ट करना है, उससे मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सिमिलर बिल्डिंग से डिपेंड करेगा, सिमिलर बिल्डिंग्स, ठीक है, सिमिलर बिल्डिंग्स इन द लोकेलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्यूबिक कंटेंट मेथड। अब क्यूबिक कंटेंट क्या रहेगा, व्हाट इज क्यूबिक कंटेंट मेथड? क्यूबिक कंटेंट में जैसा प्लिंथ एरिया में लेंथ इनटू विड्थ होगा, हाइट नहीं कंसीडर हो रहा है, लेंथ इनटू विड्थ खत्म हो गया बात प्लिंथ एरिया के लिए। मगर अगर कोई डायमेंशंस हाइट वाइज है, जैसा मेरे पास सामने वाली बिल्डिंग थी 15 फीट की, अब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ 10 फीट में, तो 15 फीट और 10 फीट में कंपेरिजन नहीं होगा, ठीक है ना। उसने तो कंस्ट्रक्ट किया था उसका एस्थेटिक व्यूज के हिसाब से, सामने वाले बिल्डिंग में या फिर जो लोकेलिटी थी उसमें एक कंस्ट्रक्शन था जिसने 15 फीट स्लैब लिया था। क्यों लिया था? ड्यू टू एस्थेटिक व्यूज में, उसको अंदर में कुछ डिजाइन था या फिर अंदर में कुछ इंटीरियर वर्क ऐसा करना था, सो दैट ही हैज टेकन द हाइट एज 15 मीटर्स।
है ना, सॉरी 15 फीट्स। तो अब मैं उसको 15 फीट्स को मैं 10 फीट से कंपेयर नहीं करूंगा, है ना। तो आई शुड कंपेयर विद द सिमिलर हाइट। तो ऐसे अगर कुछ डिसिमिलर हाइट्स की अगर बिल्डिंग है तो उसके लिए भी प्रोविजन दिया है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ने, दैट इज क्यूबिक कंटेंट मेथड। ऐसा क्या है वो उसमें, क्यूबिक कंटेंट मेथड, जिसमें देर इज वेरिएशन इन हाइट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब ये दो चीज तो प्लिंथ में हो गया था, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बन गया क्यूबिक कंटेंट के लिए, अगर उसकी हाइट वेरिंग थी और मेरी हाइट दूसरी थी, तो मैंने क्या किया, उसके हाइट से मतलब एक अलग अमाउंट लिया, मतलब उसको मैंने उसके 15 फीट से मालूम किया और मेरे 10 फीट के हिसाब से उसको चेंज कर दिया। 15 फीट का मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा स्लैब हाइट 10 फीट्स का था, है ना। तो उसको मैंने चेंज कर दिया मेरे हिसाब से, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। जो भी मेरा रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने उसको चेंज कर दिया। तो ऐसा कैलकुलेशन जो रहेगा दैट विल बी कवर्ड इन द क्यूबिक कंटेंट। क्यूब रेट एस्टिमेट इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द प्लिंथ एरिया, यस, बिकॉज एक एक्स्ट्रा आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो एक्यूरेट ही होगा। कोई भी काम अगर दो दो साइड से अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेस प्रिसाइज रहेगा, लेस एक्यूरेट रहेगा। अगर वही चीज आप हाइट में भी मेजर हो रहा है कोई भी चीज, तो वो थोड़ा उसका प्रिसाइज और थोड़ा एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस क्यूबिक कंटेंट मेथड इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। इसके सारे प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व। ये सारा थ्योरी पार्ट में बता रहा हूँ आपको, आपको ओनली वी आर गोइंग थ्रू द थ्योरी पार्ट्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहता है, कैसा आप मेजर करते हैं, ये नॉलेज के लिए, बट एक्चुअल प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व। इसके प्रॉब्लम्स भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लिंथ एरिया सॉरी प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स के प्रीवियस में आप देखेंगे। अभी तो खैर ऑनलाइन मोड है, बट प्रीवियसली ऑफलाइन मोड में जब एग्जाम्स हो रहे थे तो नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स का देयर वाज अ क्वेश्चन और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, ठीक है। आपको एक बिल्डिंग का डायमेंशन और वो सारा गिवन था, उसमें डिपेंडिंग अपॉन दैट गिवन डाटा वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर। तो वो 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था फॉर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ये कंपलसरी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 इज सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट में क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, अगर स्कूल बिल्डिंग अगर मेरे पास है तो सर्विस यूनिट में स्कूल में क्या होता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, क्लासरूम टीचिंग्स के लिए यूज होता है। तो उसमें क्या रहेगा, पर क्लास से आप मालूम करेंगे उसको, ठीक है ना, पर क्लास। नेक्स्ट, अगर हॉस्पिटल रहेगा तो क्या कैसा मालूम करेंगे आप, पर बेड से। हॉस्पिटल अगर है तो कैसा मालूम करेंगे, पर बेड से, ठीक है ना। स्टेडियम और थिएटर है तो कैसा मालूम करेंगे, पर सीट से। वाटर टैंक है तो कैसा मालूम करेंगे, पर लीटर। मतलब मेरे पास अगर पुराना वाटर टैंक था जो मतलब कुछ सालों पहले मैंने कंस्ट्रक्ट किया था और कितने लीटर्स का उसका कैपेसिटी था, अब मेरे को नया कंस्ट्रक्ट करना है उसी के बाजू में, अब वो बहुत ओल्ड हो गया या फिर उसने मतलब क्रैक्स हो गए या फिर वाटर लीकेज हो रहा है। अब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, पुराने वाले ने कॉन्ट्रैक्टर ने पर लीटर मतलब जो अमाउंट था डिवाइडेड बाय पर लीटर किया, तो मालूम पड़ गया कि 1 लीटर का कंस्ट्रक्शन इतने रुपीज में हो गया, मेरे पास इतने लैक्स में हो गया या फिर इतने थाउजेंड्स में हो गया। अब नया जो कैपेसिटी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो पर लीटर। ऑफिस में अगर है तो पर रूम हो जाएगा, ब्रिज अगर है तो पर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, पर मीटर स्पैन ऑफ ब्रिज। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स कंपैरिजन करने के लिए, दीज आर द सर्विस यूनिट मेथड्स, ठीक है। अगर क्वांटिटीज में अगर निकालना है तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड्स। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी में इसमें इसमें इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो डिविजन्स किया इसने, है ना, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी पढ़े होंगे, बीसीएम में। ये सब स्ट्रक्चर्स बिलो प्लिंथ रहता है, सुपर स्ट्रक्चर्स अबव प्लिंथ रहता है ना। फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ अगर रहेगा तो सुपर सब स्ट्रक्चर को अलग, मतलब उसमें कैलकुलेशंस उसके अलग होंगे। फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लेन के लिए, सब स्ट्रक्चर्स के लिए, और उसके ऊपर में जो रहेगा सुपर स्ट्रक्चर्स के कैलकुलेशंस अलग होंगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज आप निकाल के उसको कंपेयर करेंगे, तो पुराने वाले से निकालना है और नए वाले के भी निकालना है, एक दूसरे को मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज निकालने के बाद, ठीक है, तो उसमें डिवाइड करेंगे अप टू प्लेन तक रहेगा स्ट्रक्चर्स में, दैट इज सब स्ट्रक्चर्स, एंड अबव प्लेन इट इज सुपर स्ट्रक्चर। तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल्स इज फाउंड आउट। इसमें क्या काम करना है आपको, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से अगर कोई चीज़ निकालना है कंपैरिजन से, तो क्या करेंगे आप, तो टोटल लेंथ मालूम कर लेंगे उसका। उसके बाद फिर टू फाइंड आउट द रनिंग मीटर रेट ऑफ फाउंडेशंस, आप टोटल लेंथ मालूम कर लिए वॉल का, और रनिंग मीटर का लेंथ फाउंडेशंस का मालूम कर लिया। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स आर कैलकुलेटेड पर रनिंग मीटर्स। ऐसा आप पर रनिंग मीटर से आप वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज अगेन सिमिलरली फॉर सुपर स्ट्रक्चर। ये तो एक कंटेंट फॉर सब स्ट्रक्चर के लिए बता दिया था। अब सुपर स्ट्रक्चर में अगर मालूम करना है तो सुपर में अबव प्लिंथ क्या रहेगा, ब्रिक वर्क रहेगा, रूफ रहेगा, फ्लोरिंग रहेगा।
तो सेम सिमिलरिटी फॉर द सुपरस्ट्रक्चर्स, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ ब्रिकवर्क मालूम कर लो, रूफ मालूम कर लो, मतलब ये सारा रनिंग मीटर्स में मालूम कर लो, और उसको अपने जो एग्जिस्टिंग जिसको बनाना है मतलब फ्यूचर में, उससे मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। जो भी अभी बनाना है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर का जो बनाना है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ये एक थोड़ा सा एक अलग मेथड है जिसमें आप कैलकुलेशन रनिंग मीटर में कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये रूफ और ये सारी चीज़ें आउटर आउटर टू आउटर डायमेंशंस आप रनिंग मीटर्स में मतलब इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स में आप मालूम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज टिपिकल बे मेथड। अब टिपिकल बे मेथड क्या रहेगा, देखो बेस, व्हाट इज बेस, जैसे मैंने बताया था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, कोई भी दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज बे, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, उसके नाम क्या दिया उसने, बे, ठीक है ना। तो टिपिकल बे मेथड, B is center to center distance between the supports when the area of structure consisting of similar parts such as warehouses, railway platforms, factory sheds, godowns, warehouses रहेगा या फिर godowns रहेंगे, है ना। तो ये सारा जिसमें बेस रहते हैं, शेड्स रहते हैं, मतलब लाइन से शेड रहेंगे उसमें। अब उसमें कैसा है कि इतने सारे शेड्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है लाइन से, तो अब कोई भी एक शेड का लेंथ और विड्थ मालूम कर लो कि भाई ये 4 उसके स्टील कॉलम से और 4 कॉलम के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये 4 कॉलम है इसके शेड के, और आउटर टू आउटर कॉलम 4 है, उसमें आउटर टू आउटर डिस्टेंस कितना है। अब ऐसे मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर वे में और थोड़े मतलब नियर बाय में, तो वो मल्टीप्लाइड विद द रेट्स, ठीक है। ऐसा करके वी कैन फाइंड आउट द टिपिकल बे मेथड्स which are constructed with the intermediate column और with roof truss on walls। जैसे मैंने बताया ट्रस में भी हो सकता है या फिर कॉलम से भी आप बना सकते हैं, है ना। आरसीसी शेड्स भी हो सकते हैं या फिर स्टील शेड्स भी हो सकते हैं, है ना। प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फॉर्मिंग बेस। तो अप्रोक्सीमेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस मालूम कर लो और कॉस्ट ऑफ वन बे। मेरे पास अभी कितने बेस मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, समझो 10 बेस का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब पुराना जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ वन बेस से थोड़ा सा मैंने प्लस माइनस 10 प्लस माइनस क्यों नहीं, एडिशन ऑफ 10% एक्स्ट्रा कर दिया, कॉस्ट ऑफ वन बे हो गया। मेरे को अभी प्रेजेंट वे में 10 बेस का कंस्ट्रक्शन का अमाउंट मतलब बताना है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय सपोज दैट अमाउंट फॉर वन बे इज 50 lakhs या फिर 10 lakhs, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 10 नंबर ऑफ बेस। तो ऐसा वी कैन फाइंड आउट द विद द हेल्प ऑफ द टिपिकल बे मेथड्स, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट समझ में आया सबको? यस, यस सर। Yes, sir. approximate estimate, everyone, Yes, sir. everyone, yes, approximate Yes, estimate, sir. ये 5 डिफरेंट मेथड्स है इन Yes, ऑर्डर टू sir. फाइंड आउट द approximate। Acronyms. तो ये सारे मेथड से वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके एक मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसा निकालना है, वी हैव गॉन थ्रू द वेरियस मेथड्स, है ना। ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है। अब सिचुएशन के हिसाब से कभी आप प्लिंथ एरिया मेथड से निकाल लो, कभी आप क्यूबिक से निकाल लो, कभी स्कूल बिल्डिंग सामने आती है तो आप सर्विस यूनिट से निकाल लो, कभी रोड कंस्ट्रक्शन से सर्विस यूनिट से निकाल लो, किसी का गोडाउन बना के देना है फ्यूचर में तो टिपिकल बे मेथड से मालूम कर लो। तो मतलब हर एक मेथड का कोई स्पेशलिटी है ना। जैसा प्लिंथ एरिया स्क्वायर मीटर्स में होता है, और क्यूबिक कंटेंट मीटर क्यूब में होता है, सर्विस यूनिट नंबर्स में होता है ना, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट सुपर और सबस्ट्रक्चर में होता है, और लास्ट जो था फिफ्थ जो है वो बेस, है ना, बेस मेथड। So these are the 5 important methods with the help of which we can find out the approximate estimate of the structure, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर का approximate estimate we can find out with the help of these 5 methods, ठीक है। So any doubts related with this, anything which is not understood, कोई चीज़ ऐसा है that is to be explained once again, तो ऐसी थी that is not understood, everything is understood, yes। Yes, sir. Here